Okay जी, let's start. और ये so this is basically the outline of your course, and I already presented the course overview in previous lecture. And in this lecture, we will see what is AI, and then we will see a little bit history of the artificial intelligence, and finally we will come up with some state of the art things which are going on recently in this field. So this lecture is basically very much theoretical in nature. So, and the course outcomes of this course are according to the different topics that you will study in this course. And the first course outcome is about intelligent agents. The second one is about uninformed searches. And then we will go on to another topic that is called heuristic searches. And then CO4 is local and optimized search methods for which you have uh, or for which the video lectures are already available on the platform. In CO5, we will see how we can build evolutionary strategies to solve various problems. And then CO6 is about constraint satisfaction problems. Finally, we will see adversarial search algorithms, and CO8 is about the final project. I don't know whether I will assign that project at the end of this class or not, but if it will be the case, then you have to design an agent at the end of the course in the form of a project. So, course assessment methods. So you can expect assignments at the end of each topic or at the end of each CO. Then there is a quizzes, and at least 2 quizzes will be held on. A midterm and final term examination. This is something for which you already know what is the ratio of these examinations. You already know because this is something traditional. Normally, 30% has the weightage of midterm examination and 50% has the weightage of final term examination. Lab projects. Okay, so the assignments which I will give to you would be the very much practical or very much programming natured assignments. So that will also be called your lab projects. It is up to you that either you solve your assignments at home or in the labs. So currently there are no physical classes, so definitely you will solve these assignments at your home and then you will submit. So there is no difference between the homework assignments and the lab projects due to this COVID situation. So it's the same thing. The textbook and the reference book is given on this slide, and I already explained and I already informed about these books in my previous lectures. So you have to follow these books. So now this is the first definition. Are you hearing me? My voice is clear or Yes, sir. not? Okay. Yes, Yes, sir, sir. it's clear. So this is the first definition, and it is a very general definition about intelligence. So there is an author that is the name of that author is Dijkstra, and I hope that you already heard the name of this author in your previous courses like algorithms. Uh, Dijkstra is a person who is very well known for his shortest path algorithm. So anyhow, he gave some statement in his article that it is the dream of AI that we want to build machines that can think, that can learn, and that can create other solutions. So he said that these three attributes, thinking, learning, and creation, is something we want in our machines in future, and this is the dream of AI.
And then he also said in that article that when he posed this definition in that article, then he also mentioned the critics he faced. And he said that some people are asking me that, is it possible that machines can think? And then he replied this question with an answer that, what was the situation when submarines were invented? And when submarine was invented, at that time people were asking that, can submarines swim? uh, uh, but now we know that submarines can swim and uh, go deep under the water. So it is happened, and it is something we are experiencing. So same is the situation here with AI. uh, and he said that this is something we want, that someday we will have computers or machines that will have the tendency of thinking and learning and creation of other solutions. So so this thinking, learning and creation is basically called intelligence in general words. So now move on to the next slide, that is about the two categories that we have in AI. The first category is strong AI, and the second category is weak AI. So now we will see what are the definitions of these two categories, strong AI and weak AI. So the first point is about strong AI, and the second point is about weak AI. And if we want to build some computers uh, that can have the tendency of thinking uh, at a level of humans, or in other words, if we have computers that can have the capability of thinking at the level of humans, in other words, the level of thinking in humans, if we build this level in computers, and if our computers are conscious, and also they can have the tendency of experiencing their emotions, then this is the category of strong AI. Or in other words, if the computers have the capabilities like humans, then this is the category of strong AI. But on the other hand, if but this first category, which is the strong AI, is not possible yet. Uh, we don't have any computers or machines which we can say are very much equal to humans level of cognition or level of thinking, learning and creation. So this strong AI is not possible yet. So what is then the other category? The other category is weak AI. In this category, uh, we normally build some modules, system, applications, agents, which can have the thinking like features, which means they will not have the capabilities equal to humans, but they can have the feature, thinking like features partially in those applications, but not at the level of humans. So if we have the thinking like features in our systems, our applications or softwares, then those systems, application or software, we can say they will be very much useful tools for us. So, and then if you build an application which have some thinking like features, not fully but partially, then we can also say that this is not something now, not a machine like thing. Because normally we have the concept of machines that machines are something which are very much limited, but humans are something which are not limited. So, but if we develop an application or software
in which we have some capability very close to the intelligence level of a human, not fully but partially, then that is something you can say that now my application or software is not behaving like machine, rather it is behaving like humans. अगर मैं उर्दू में कहूँ तो शायद आपको ज़्यादा समझ आए कि स्ट्रॉन्ग एआई जो है उसमें ऐसे कंप्यूटर्स या मशीन्स आप बनाते हैं जिसमें वो टोटली ह्यूमन लाइक कैपेबिलिटीज उनके अंदर आ जाएं, उनके अंदर कॉन्शियसनेस यानी कि सोचने समझने की सलाहियत भी हो और इमोशंस को एक्सपीरियंस करने की सलाहियत भी हो। तो ये तो स्ट्रॉन्ग एआई है जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है उसमें हम कहते हैं कि बिल्कुल इंसानों की तरह तो नहीं, लेकिन थोड़े से इंसानों की तरह फीचर्स, इंसानों की तरह थोड़े से थिंकिंग लाइक फीचर, मामूली से। अगर हम ये किसी एप्लीकेशन में, मॉड्यूल में, सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में, एजेंट में ये बिल्ड कर दें, तो फिर वो सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, मशीन या जो कुछ भी है वो बड़ा यूजफुल टूल बन जाएगा। और यही वजह है कि आप अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ एप्लीकेशंस देखते हैं जिनको आप कहते हैं कि ये बड़ा इंटेलिजेंटली बिहेव कर रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको ये कहे कि आपकी सोशल मीडिया के ऊपर जो पोस्ट्स हैं वो आप उनको कोई एनालाइज करें किसी कोई सॉफ्टवेयर बना के, और फिर आप बताएं कि ये कमिंग इलेक्शंस में कौन सी पार्टी जीतेगी, तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं। और ये यानी कि फिर एक ऐसी चीज़ होगी, कर तो आप प्रिडिक्शन ही रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी सी ऐसे ही एक किस्म की प्रिडिक्शन होगी जैसे मीडिया पे बहुत से सहाफ़ी लोग, जर्नलिस्ट लोग बैठे हैं और वो प्रिडिक्शन कर रहे हैं जी ये सूरत हाल है और ये वाली पार्टी जीत जाएगी। तो ये फिर काफ़ी इंटेलिजेंट एप्लीकेशन हो जाएगी आपकी, और आपको पता है कि इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो एनी हाउ अगर इस तरह की कोई एप्लीकेशंस आप बना देते हैं जिसमें कि आप थिंकिंग लाइक फीचर्स उसमें ऐड कर देते हैं, तो वो टूल बे यूज़फुल हो जाता है ज़्यादा। और फिर आप ऐसे टूल को आप उसको ये नहीं कहते कि इसने अब बिल्कुल मशीन की तरह बिहेव किया है, बल्कि आप कहते हैं कि ये इसने थोड़ा-सा ह्यूमन्स, इंसानों की तरह बिहेव किया है। तो ये कैटेगरी वीक एआई है और हम इसी कैटेगरी के अंदर हैं, और आपकी एआई भी अभी तक इसी कैटेगरी में है, वीक एआई में। और आपका जो कोर्स है वो भी इसी कैटेगरी में ही है। स्ट्रॉन्ग एआई मैंने अभी जैसे पहले कहा कि वो अभी वो बातें पॉसिबल नहीं हैं। तो थोड़ा सा और देखते हैं वीक एआई। अब यही हमारी कैटेगरी है तो यही फिर आपके सामने है। तो ये कैटेगरी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल से मुराद ये है कि कोई सोल्यूशन आप उसमें बनाते हैं, और मैंने मोड इसलिए चेंज किया है क्योंकि इसमें आपको समझ आएगी, शायद उस तरह आपको समझ ना आए, वो लैंग्वेज बैरियर होता है, इसलिए फिर मैंने अपना मोड बदल लिया। मैंने महसूस किया कि उस तरह फिर आपको कोई ख़ास समझ नहीं आएगी। तो एनी हाउ, तो फ्लेक्सिबल इसलिए है कि कि आप कोई चीज़ उसमें कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, वो सही नहीं बनती, आप उसको तोड़-जोड़ लेते हैं, फिर उसके अंदर मॉडिफ़िकेशन कर लेते हैं और उसको किसी और डायरेक्शन पे ले जाते हैं। और बना लेते हैं तो उसको मुकम्मल आपको आज़ादी है, उसमें फर्दर मॉडिफ़िकेशंस करके किसी मज़ीद कोई एक्सटेंशन आप उसकी कर सकते हैं। और तकरीबन तमाम किस्म के जो प्रॉब्लम्स आपके इर्द-गिर्द एग्ज़िस्ट करते हैं, आप उनके ऊपर कोई ना कुछ प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इसलिए कहा गया ये फ्लेक्सिबल है। और एक और बात कि जब तक आपको कोई एआई के अंदर कोई प्रॉब्लम जब तक आपको समझ नहीं आता, तो फिर कहा जाता है कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इसका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ज़्यादा है, या कहा जाता है कि ये अभी ये इंटेलिजेंट एप्लीकेशन होगी बनाने से पहले, जब तक आपको कुछ समझ नहीं आती। लेकिन एआई में जब आप कोई प्रॉब्लम समझ लेते हैं और उसको बना लेते हैं, तो फिर उसका वो जो इंटेलिजेंट लेवल है, फिर उसके लिए आप टर्म यूज़ करते हैं कि अब ये लेस इंटेलिजेंट हो गया है। बिल्कुल उसी तरह ही
कि अगर आपकी क्लास में एक बच्चा है जो कि प्रोग्रामिंग में अच्छा है और सारे लोग उसके पास अपने प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं कि यार इसका तो प्रोग्राम बना दो, और वो आपको ठक करके बना देता है, देर नहीं लगाता वो। तो आप लोगों के लिए जो जिनको ये प्रॉब्लम समझ नहीं आता, तो आप कहते हैं यार ये बड़ा मुश्किल है, इसमें काफ़ी इंटेलिजेंस चाहिए। लेकिन जब आप उस बच्चे के पास ले जाते हैं जिसको अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा है चीज़ों की, तो वो जब आपकी आपकी बात सुनता है तो वो आपको 2-4 मिनट में उसका सोल्यूशन दे देता है। सोल्यूशन देने के बाद अब उसके लिए जो है, उसके लिए वो इतनी मुश्किल टास्क नहीं थी, उसके लिए वो लेस इंटेलिजेंट ही वर्क था। आप लोगों के लिए वो काफ़ी, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस इन्वॉल्व थी। लेकिन फिर जब आप बना लेते हैं तो थोड़े से व्यूज़ आपके डिफरेंट होते हैं। आप खुद बनाते हैं, अगर आप खुद बना लें, बनाने से पहले आप कहते हैं कि ये तो मुश्किल चीज़ थी और ये मुझसे नहीं बनेगी। लेकिन अब जब आप उसको समझ के बना लेते हैं तो फिर आपके व्यूज़ डिफरेंट हो जाते हैं। आप कहते हैं नहीं, नहीं ये कोई चीज़ थी, ये तो बड़ी आसान थी। तो ये यहाँ पे ये यही बात ही कहना चाहता है कि जब तक कोई प्रॉब्लम जो है, जब तक आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करते तो वो आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल ही है। जब वो आप उसकी अंडरस्टैंडिंग अचीव कर लेते हैं तो फिर आप वो उसका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस कम हो जाता है, तो वो लेस इंटेलिजेंट हो जाती है। इसी तरह दूसरे पॉइंट में ये बता रहा है कि इसी तरह लोग काम करते आ रहे हैं एआई की कैटेगरी में, और और उसके अंदर से नई-नई टर्म्स, नए-नए एरियाज़ वो निकलते आ रहे हैं। यही वजह है कि आपने सुना हुआ है कि मशीन लर्निंग भी कोई चीज़ है। आपने सुना हुआ है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी कोई चीज़ है। आपने सुना हुआ है कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल भी कोई चीज़ है। आपने सुना हुआ है कि बिग डेटा भी कोई चीज़ है। डेटा साइंस भी कोई चीज़ है। तो ये मुख्तलिफ लोग हैं, और एआई के अंदर ऑलमोस्ट एल्गोरिदम ऑलमोस्ट सेम है। एनएलपी, मशीन लर्निंग, आईआर, तमाम बिग डेटा, एल्गोरिदम सेम है सारे, ऑलमोस्ट सारे सेम। बस उसको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ करते जाते हैं, और जो भी रिसर्चर होता है, जो लोग भी एमएस पीएचडी करते हैं, वो उसको नया नाम दे देते हैं, फिर वो नए नाम ऐसा ऐसा मशहूर होते रहते हैं और आपके सामने आते रहते हैं। तो यही वजह है कि एक एरिया था एडवांस्ड सर्चेस का, आप पढ़ेंगे अभी अगले तीसरे चैप्टर में शुरू हो जाएगा, अनइन्फॉर्म्ड सर्चेस, इन्फॉर्म्ड सर्चेस। फिर पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, आपकी ये जो जुबानें आप बोलते हैं, इनके इनसे रिलेटेड भी एक एरिया है जिसको नॉर्मली एनएलपी कहा जाता है। फिर पार्ट्स ऑफ मशीन लर्निंग, अलहदा से मशीन लर्निंग का टाइटल आपने सुना हुआ है। प्रोबेबिलिस्टिक लर्निंग, जिसके अंदर स्टेटिस्टिकल मॉडल इन्वॉल्व हैं बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी वैल्यूज, तो वो वाली, ये वो मॉडल इसके अंदर आते हैं। और इस तरह बहुत सी फील्ड जो हैं और उनके नाम जो हैं आप जानते हैं, और वो सारे इसीलिए आपके सामने आए हैं क्योंकि एआई के अंदर अब ऐसा ऐसा लोग काम कर रहे हैं और नए नए नाम आ रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम्स तो वो सॉल्व करते जाते हैं, वो तो वक्त के साथ साथ वो फिर लेस इंटेलिजेंट हो जाते हैं, और जो प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हो पाए तो वो उसके लिए अलहदा कैटेगरी बोली जाती है हार्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम, कि यहाँ पे लास्ट पॉइंट में लिखा जाता है कि वो अभी हार्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं। तो ये एक टर्म है और कुछ नहीं, कि जो आपने सॉल्व कर लिए ठीक हो गया, आसान होगी, सारे लिटरेचर में भी आ जाएगा और आप उसको समझना शुरू कर देंगे। लेकिन जो अभी सॉल्व नहीं हुए तो वो हार्ड टू सॉल्व कैटेगरी में रहेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं कि एआई क्या है। अब ये आपके सामने एआई की डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन। इसके अंदर 4 चीज़ें हैं, और वो कहता है कि आपके एप्लीकेशंस, आपके सॉफ्टवेयर्स, आपके एजेंट्स, आपके सिस्टम्स दैट कैन थिंक लाइक ह्यूमंस, जो ह्यूमंस की तरह थिंकिंग कर सकें, दैट कैन थिंक रैशनली, जो रैशनली थिंक कर सके। मैं बताऊंगा कि रैशनली थिंकिंग क्या है, ये देखेंगे आप। और इसी तरह जो ह्यूमंस की तरह एक्ट कर सके या रैशनली एक्ट कर सके। ये ऑर्डर कोई ज़रूरी नहीं है, आप इस ऑर्डर को बदल सकते हैं। तो सिस्टम्स दैट कैन थिंक लाइक ह्यूमंस, एक्ट लाइक ह्यूमंस, दैट कैन थिंक रैशनली, और फिर एक्ट रैशनली। इस तरह भी आप कर सकते हैं जैसे आपको आसानी हो।
तो बज़ाहिर तो ये है कि ऐसे सिस्टम जो ह्यूमन की तरह थिंकिंग करें या रैशनली थिंकिंग करें या ह्यूमंस की तरह एक्ट करें या बिहेव करें या रैशनली बिहेव करें, तो ये वाले जो सिस्टम्स होते हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डोमेन में आते हैं। और ऐसे और इस तरह की नेचर के चीज़ों को आप फिर बोल सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एग्जांपल है। या आप कह लें कि एआई में आप ऐसे सिस्टम्स डेवलप करते हैं जो कि ये चार चीज़ें रखते हैं। बस ये भी एक डेफिनेशन इस तरह भी कह सकते हैं। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि ये थिंक लाइक ह्यूमंस क्या है, थिंक रैशनली क्या है, एक्ट लाइक ह्यूमंस और एक्ट रैशनली क्या है। तो ये आपके सामने एक स्लाइड है। ये रिकॉर्डिंग हो रही है? यस सर। हो रही है, गुड। मुझे कोई सिंबल नजर नहीं आ रहा, मुझे इसलिए लग रहा है नहीं चल रही है। अच्छा, तो ये अब आपके सामने एक्टिंग ह्यूमनली की एक स्लाइड आई है। ये कैटेगरी, ये चारों कैटेगरीज हैं, हम देखेंगे, लेकिन अभी पहली कैटेगरी रैंडम ऑर्डर में अब आपके पास आई है। एक्टिंग ह्यूमनली क्या होता है, एक्ट लाइक ह्यूमंस क्या होता है। अच्छा, इसके लिए अब ये सवाल पैदा होता है, या अगर आप कहें कि बेसिकली इसके लिए एक टेस्ट है, और उस टेस्ट से आप अंदाज़ा लगाते हैं कि वाकई वो जो आपका सिस्टम था या एजेंट था, उसने ह्यूमंस की तरह एक्ट किया है या नहीं। तो इसके लिए एक टेस्ट है जिसको ट्यूरिंग टेस्ट कहा जाता है। तो 1950s आपके सामने लिखा हुआ है। एलन ट्यूरिंग का नाम आप जानते हैं। कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस ये मैगजीन है जिसके अंदर ये इसका आर्टिकल है। तो उसमें वो बातें कर रहा है कि कैन मशीन्स थिंक और कैन मशीन्स बिहेव इंटेलिजेंटली। ये लोग भी बातें कर रहे हैं और वो खुद भी फिर उसमें वहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है जी। लोग कहते हैं जी मशीन थिंकिंग कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि लोग कहते हैं जी मशीन्स इंटेलिजेंटली बिहेव करें, इंटेलिजेंटली बिहेव करें। अब इंटेलिजेंटली क्या था वो पीछे हमने देखा, उसकी दो बातें, वो ह्यूमंस लाइक थिंकिंग, लर्निंग और क्रिएशन, इस तरह की बात की थी हमने। तो अब इन सवालों के जवाब के कैन मशीन्स बिहेव इंटेलिजेंटली, इस सवाल का जवाब कैसे मिलेगा। अब यहाँ इंटेलिजेंट से मुराद वही मशीन इंटेलिजेंटली बिहेव करती है जो ह्यूमंस की तरह बिहेव करे, जो ह्यूमंस की तरह एक्ट करे। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने एक टेस्ट बनाया, और वो एक ऑपरेशनल टेस्ट था फॉर मेजरिंग द इंटेलिजेंट बिहेवियर। उसको आप इमिटेशन गेम भी बोल सकते हैं। अब इमिटेशन से क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि किसी शख्स को या किसी चीज़ को आप कोई टास्क दें और वो टास्क परफॉर्म करे, या आप कोई सिमुलेशन भी हो सकती है सिंपली आपकी। तो एनी हाउ, ये टेस्ट क्या है, ये इस पिक्चर में दिखाया गया आपको कि ये बीच में एक दीवार है, इसके एक साइड पे यहाँ पे ह्यूमन इंटेरोगेटर जो है ना बैठा हुआ है, जो ह्यूमन है, जो कि सवालात करेगा, कम्युनिकेट करेगा। इसको नहीं पता कि दीवार के दूसरी साइड पे क्या है। तो यहाँ पे दूसरी साइड पे सिर्फ एक आपका एआई सिस्टम ही होगा, आपका प्रोग्राम होगा, सॉफ्टवेयर होगा, एजेंट होगा। लेकिन इसको नहीं मालूम ह्यूमन इंटेरोगेटर को कि ये दूसरी साइड पे क्या है। वो उसके साथ कम्युनिकेट करेगा, और फिर जब वो कम्युनिकेशन ख़त्म होगी तो फिर ह्यूमन इंटेरोगेटर से पूछा जाएगा कि हाँ भाई बताएं कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, क्या आपने गपशप की है, क्या बातें शातें की हैं। तो वो अपना बताएगा। अगर आपकी क्लास में से कोई लड़का है तो वो कहेगा हाँ जी बड़ा अच्छा रहा एक्सपीरियंस, और ये इधर की मारेगा उधर की, बड़ा फिट रहा, बड़ा मज़ा आया, बड़ा इंटेलिजेंट बंदा था वो, या नालायक बंदा था वो। एनी हाउ, तो उसकी बातों से अंदाजा लगाया जाएगा कि उसको नहीं पता लगा कि उसने किसी सॉफ्टवेयर के साथ चैट की है या कम्युनिकेशन की है।
यानी कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। तो फिर इसका मतलब होगा कि वो जो आपका सिस्टम है इधर, या जो एजेंट है, वो उसने कैसे बिहेव किया, उसने ह्यूमनली बिहेव किया। उसने ह्यूमनली बिहेव किया, तभी इस ह्यूमन इंटेरोगेटर को नहीं महसूस हुआ कि उसने किसी रोबोट के साथ बात की है या या किसी इंसान के साथ बात की है। वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। तो यहाँ पे ये दूसरा ह्यूमन दिखाया है, वो सिर्फ इसलिए दिखाया गया कि इसको पता नहीं लगे, पता नहीं नहीं अगर अगर उसको पता नहीं चलता कि मैं ह्यूमन से बात कर रहा हूँ या सिस्टम के साथ, तो फिर ये टेस्ट पास हो जाता है और आपकी फिर एप्लीकेशन को या आपके एजेंट को इंटेलिजेंट एजेंट कहा जाता है। लेकिन अगर उसको पता लग जाता है कि नहीं भाई मैं किसी मशीन से बात कर रहा हूँ, तो फिर आपका जो सिस्टम है फिर वो फेल हो जाता है। उसके अंदर फिर मॉडिफिकेशंस की जरूरत है, उसको मजीद बेहतर करें आप। तो ये टेस्ट था। अच्छा, जब 1950s में ये बातें हो रही थी और ये टेस्ट शेस्ट उन्होंने बनाया, तो उन्होंने और बातें भी प्रिडिक्ट की कि जब 2000 ईयर आएगा, तो उन्होंने कहा कि ये काफ़ी चांस है कि एक मशीन जो है तकरीबन 5 मिनट के लिए किसी भी शख्स को किसी किसी भी शख्स को वो बेवकूफ़ बना लेगी 5 मिनट के लिए। 30% चांस है, उसने कहा, कि 2000 तक ऐसी ऐसी यानी कि एप्लीकेशंस बन जाएंगी जो किसी भी ले पर्सन को, ले मैन को 4-5 मिनट के लिए वो बेवकूफ़ बना सकेंगी। लेकिन उसके बाद वो पता चल जाएगा उनको कि ये हम जो है ना किसी सॉफ्टवेयर के साथ बात कर रहे हैं। तो ये उनकी प्रिडिक्शंस थी, और आज आपके इर्द गिर्द ऐसी कई एप्लीकेशंस एग्जिस्ट करती हैं और आप अक्सर एक्सपीरियंस करते रहते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद आपको पता लगता है ओहो, ये तो मैं किसी से नहीं किसी इंसान से बात नहीं कर रहा, मैं तो किसी रोबोट के हत्थे चढ़ा हुआ हूँ। तो आपको ये चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते रहते हैं। तो इसके अलावा और भी उन्होंने आर्गुमेंट्स दिए, और उन्होंने कहा है, और बातें या प्रिडिक्शंस दी, जो उन्होंने कहा है कि आगे 50 से आगे 50 साल 2000 तक जो है, जो वो काफ़ी जो है वो आ, सच साबित हो चुकी हैं। आप ये बुक पढ़ें, आपको ये सारी बातें थोड़ी बहुत ही उनका उनके बारे में पता चलेगा डिटेल से। अच्छा, और उस वक्त उन्होंने एआई की कैटेगरी में जो जो कंपोजिशंस बनाई, जो उन्होंने डिविजन्स की, तो उन्होंने कहा कि इसकी जो कैटेगरीज हो सकती हैं किसी भी एआई एप्लीकेशन की, या तो उन्होंने इस तरह करके कुछ बनाई कि एक नॉलेज वाली एक कैटेगरी है। नॉलेज से मुराद, जब आप कोई ये सॉफ्टवेयर या एजेंट बनाएंगे, तो एजेंट बनाते हुए, उसको कोड करते हुए, आप उसके अंदर जो डेटा प्री डिफाइंड पहले उसके अंदर स्टोर करेंगे उसकी रनिंग से पहले, तो उसको नॉलेज बोलते हैं। फिर रीजनिंग से मतलब इफ एल्स, ये अगर ये हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए, फलानी सिचुएशन हो जाए तो क्या करना चाहिए, ये सारी रीजनिंग कैटेगरी में आती है। इसके बाद लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग जो जुबानें आप बोलते हैं, नेचुरल लैंग्वेजेस,